Hello everybody, welcome to Sunya IAS. So today we will be discussing the paper 2 of UPSC CSE prelims, that is CSAT, and we will be solving in this series the previous year question papers, that too topic wise. So you may not have found such type of topic wise questions bifurcation in any platform till now, and I believe this would be very beneficial to all of you, because it is very difficult to bifurcate the questions, that too topic wise. So Sunya IAS has brought this topic wise question analysis and discussion for you. So what my advice is, sir has already taught you in the class the topics we are going to cover. Okay, so my suggestion is, first watch those class videos carefully, because sir has taught very beautifully all the topics, and then you can watch my video on previous year question papers. And if you have done these two exercises, I don't think you will find any difficulty in solving any question of UPSC CSAT. Okay, and everybody knows कि previous year question तो की होता है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए, तो इसलिए हमने ये सीरीज लॉन्च किया है. And after watching this video, you try to solve these questions again from your own side. Okay, and if you find any difficulty, we are here to help you. Okay, so let's begin. So today we will be discussing the topic of Venn diagram. Okay, so every year they ask one or two questions from Venn diagram, and this is a very easy topic. So sir has already covered the topic of Venn diagram, so you can access the video of what sir has taught in the class from the you will be having that my subscription section, and in this my subscription section there is a topic of coding and decoding. Sir has covered it in two levels, that is basic level and advanced level, and here he has also covered the concept of Venn diagram. So once you are done with that video, with that lecture, then you come to my video, and I think you will be getting something new from this video, and also you will be very thorough with the previous year questions after this discussion. So let's not waste the more even a single second. We'll move to our first question of the Venn diagram. Okay, so before starting the Venn diagram topic, I would like to tell you two things that you need to keep in your mind while solving any Venn diagram question. The first thing is inside out, and the second thing is anything outside. Okay, so what these two things, so actually क्या है कि हम जब भी कोई वेन डायग्राम का क्वेश्चन करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट. और ये एक हमारा चेक है, जब भी हम कोई क्वेश्चन हम अपना वेन डायग्राम बना लेंगे, देन वी विल चेक whether the digits we have mentioned in our Venn diagrams are correct or not through this check. Okay, so I would just give you one short example. Generally in Venn diagram they give you two things or three things generally in common. Let's say for example, some people speak Hindi, some people speak English, some people speak, let's say, Sanskrit. Okay, now they will be giving you some, the number of people who speak Hindi and English both,
Okay, some English and Sanskrit, some Hindi and Sanskrit, some all the three languages. So while solving the Venn diagram question, what will we do? This is the area which covers the people who speak three languages. Means these are the people who are having three things in common. Okay, then this and this tick portion, these are the people who are having two things in common, and this and this, these are the people who speak only one language. Okay, so what will we do? We will, while trying to solve the problem, we will go inside out. Means we'll start from here, inside means three common, then we go outside, then we will solve the problem for two common, means the people who are speaking two languages or who are playing two games if the game is the question is about game, and then we will at last we'll find out the single things, right? Like the people who speak only one languages, only one language, or the people who play only one sport. Okay, so this is our concept of inside out. If there are only two things, let's say only Hindi and English, there are only two languages, then we'll first find the common inside, then means two common, and then we will go outside, means the people who speak only one language. You will get more clarity when we will be solving the question. Okay, and the second thing is anything outside. So what is this? Actually, in the question, there they might be giving you, there are some people speak Hindi, some English, some Sanskrit. Okay, but we need to check, are there any people who don't speak anything, who don't speak any of the three languages given in the question? Okay, because if there are some people who don't speak any of the languages, then we need to subtract that number from the uh, total number of the class or whatever the number of students are there. For example, if there are 100 students, okay, and there are 10 students who don't speak anything, and if we didn't count this 10 in our calculation, then एक्चुअली 90 पीपल ही हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, राइट? पर अगर हमने इस 10 को ध्यान नहीं दिया तो हम तो 100 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, राइट? देन आवर होल कैलकुलेशन विल बी रॉन्ग. सो वी नीड टू सी वेदर anything is anything outside of our circle or outside of our Venn diagram. Generally in the question they give कि at least, everybody speak at least one language, everybody play at least one sport. Okay, but if they haven't given such kind of line, then you need to check after making the Venn diagram, after like by doing your calculations, whether are there any persons, is there any person who don't speak any of the language, or is there anybody who is outside our Venn diagram. Okay, so these are two basic things, so keep this in mind. We will use these two things in solving every question, and believe me, every question will be solved very easily. Sir has already covered this topic, so if you have watched that video, this session would be a cakewalk for you. Okay, so let's solve that question. So let's read the question. What is the question? Question is, all members of a club went to Mumbai and stayed in a hotel. On the first day, 80% went for shopping. Fine. And 50% went for sightseeing. 50% went for sightseeing. Okay. Whereas 10% took rest in the hotel. Which of the following conclusions can be drawn from the above data? Okay. So if we make our Venn diagram, okay, so 80% went for shopping. Just a second, some mistake. Okay, I'll select pen and then blue pen.
blue. Okay, so 80% went for shopping. So these are people shopping, right? 80%. And 50% went for sightseeing. So let's say there are some people common, and this whole sightseeing 50%. Whereas 10% took rest in the hotel. I talked about this 10% in my second concept, that is checking. They have already given you that 10% people, they are taking rest in the hotel. That means those 10% people, they are not in our Venn diagram. Okay, so if we make our Venn diagram, here these are 10% people. So these 10% people are those who are not part of our Venn diagram. They are neither doing shopping nor even went for sightseeing. Okay, which of the following conclusion can be drawn? Okay, so generally if the question is given in terms of percentage, okay, so percentage is out of 100, so we will calculate in terms of 100. Okay, so if we simply add, if there are 100% students, if there are 100% students and 10% are not the part of, you know, the shopping and sightseeing, that means only 90% students are the part of shopping and sightseeing both. So our, this is our target audience, 90%. Okay, now if we calculate this 80% and 50%, let's assume that shopping and sightseeing, those people are mutually exclusive. It means जो शॉपिंग कर रहे हैं वो साइट सीइंग नहीं कर रहे हैं, जो साइट सीइंग कर रहे हैं वो शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा केस है तो 80% स्टूडेंट्स शॉपिंग वाले हैं, 50% साइट सीइंग वाले हैं, तो 80 + 50 130%, ये टोटल होना चाहिए था अगर दोनों सब अलग अलग होते। पर एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 90%। 130% नहीं है ना, this number cannot be greater than 90%. This is a total number of students who are taking part in shopping and sightseeing. That means if we subtract 130 minus 90, then this 40% is coming extra. This 40% is coming extra. That means this 40% will be our common. ये 40% दो बार ऐड हो रहा होगा, शॉपिंग में भी ऐड हो गया, साइट सीइंग में भी ऐड हो गया, इसलिए ये हमारा ज्यादा आ गया 130%। ओके, तो दिस 40% जनरली हम क्या कर रहे हैं इसमें, इनसाइड आउट वाला टेक्निक लगा रहे हैं। इनसाइड आउट क्या होता है? फर्स्ट हमने वो निकाले जो कॉमन है, जो टू कॉमन, जो शॉपिंग भी कर रहे हैं साइट सीइंग भी कर रहे हैं, दिस एट 40%। ये 40% इधर से निकाला हमने। कोई डाउट है इसमें? आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, तो ये 40%। अब अगर मैं अब केवल शॉपिंग वाली चीज देखूं, ये है शॉपिंग वाला, टोटल शॉपिंग के कितने? 80%। 40% ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो बचे कितने? 40%, राइट? हाउ दिस 40 केम? 80, ये टोटल शॉपिंग में 80 है, 40 ऑलरेडी हैं जो साइट सीइंग भी कर रहे हैं और शॉपिंग भी कर रहे हैं, मींस 40। ऐसे ही साइट सीइंग के टोटल कितने हैं? 50, और इस सर्कल में ऑलरेडी 40 हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 10%। मींस द पीपल who are doing only shopping, that is 40, who are doing only sightseeing, that is 10, and those who are doing both the things, shopping and sightseeing, that is 40%। ठीक है, अब हम अपना ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग। 40% मेंबर्स वेंट फॉर शॉपिंग एज वेल एज साइट सीइंग, राइट? 40% लोग हैं जो कॉमन है, तो दिस ऑप्शन इज राइट। ओके, the second thing is 20% members went for only shopping. Only shopping 20% नहीं है, it is 40%, है ना? Then this option is wrong. Then what will be our correct option? Correct option is option A, one only. So this question has been asked in the year 2019. So you can see how easy these questions are. ठीक है, so let's move to the next question.
In a group of 15 people, 7 can read French. Okay. ये फ्रेंच लैंग्वेज है, कितने हैं? 7, सॉरी 7. 8 can read English. Okay. So generally we make overlapping circles, because in these kind of questions generally in 90 to 95% of cases generally there are some people who are common, who speak both languages or who speak 3 languages. Okay. While 3 of them can read neither of these 2 languages. Okay, so this is 8. So English speaking is 8. Total number of students given is 15. And now we need to see, is there anybody who is neither speaking French nor speaking English? Okay, so we'll read the next line. While 3 of them can read neither of these 2 languages. So in the question itself they have given that there are 3 people who are neither speaking French nor speaking English, means they are outside of our Venn diagram. So 3. Okay, so this is again concept number 2, that is check. They have already given you, then you need not to check further. Okay, so now if we again assume that the people who are speaking French and the people who are speaking English are mutually exclusive, then the total number should be 15, 7 plus 8. But the students who are speaking these 2 languages are 15 is the total number of students, and there are 3 students who are speaking neither of the language, right? Then there are 12 students who are speaking at least one language. They are speaking either French or English or both. So again 15 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो रहे हैं, 7 और 8 अगर इंग्लिश को हम अलग अलग मान लें, पर 12 स्टूडेंट्स हैं जो इस लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो दिस 15 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 12, है ना? देन इसका मतलब ये जो कॉमन है ये 2 बार आ रहा है, राइट? देन द कॉमन इज 15 minus 12 equal to 3, means there are 3 students who are speaking both the languages, right? 3. How did we get that 3? We calculated that 7 plus 8, 15. Okay, so there are 15 students if there is nobody common. अगर ऐसा होता, फ्रेंच ये है, इंग्लिश ये है, फ्रेंच है, ये इंग्लिश है, ये 8 है, ये 7 है, this is 8 plus 7, 15. अगर if this case would have been there, then the total number of students would have been 15. But in the question itself they have given that there are only 12 students who are speaking any of the language. It means कि ये this is not the case, है ना? ये केस नहीं है. इसका मतलब there are some people common. कितने कॉमन होंगे जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं? मीन्स 15 minus 12, that is 3. 3 students are common. If this number is 3, total French speaking population is 7. 3 is already in this circle who are speaking English only, but total French speaking is 7. Then only French means only this circle, this, है ना? This is 7 minus 3, that is 4. Then only we can see कि ये अगर हम 4 और ये 3 कर दें तो टोटल फ्रेंच वाले 7 हो जाएंगे, राइट? ऐसे ओनली इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे? इंग्लिश का देखो, टोटल इंग्लिश ये है, दिस सर्कल इज टोटल इंग्लिश. टोटल इंग्लिश के 8 है, 3 जो है कॉमन है, दैट मीन्स इस सर्कल में 3 ऑलरेडी आ चुका है, तो अब कितना आएगा टोटल? 8 minus 3, दैट इज 5. ठीक. सो अगर हम देखें तो देर आर 3 people who are speaking both French and English, there are 5 people who are speaking only English, and there are 4 people who are speaking only French. So now we'll see कि क्वेश्चन में क्या पूछा. The number of people who can read exactly one language. Exactly one language means केवल फ्रेंच और केवल इंग्लिश वाले कितने हो गए? 4 plus 5, that is 9. Option B, 9 is correct. ठीक है. This question again has been asked in the year 2019. So till now in 2019 we have covered 2 questions of Venn diagram, and if you know the concept of Venn diagram, बस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत ब्यूटीफुली जैसे उन्होंने लेक्चर में बताया है या जैसे मैं भी बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करेंगे तो आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन. ठीक है, तो
Now let's move to the next question. "19 boys turn out for playing hockey. Of these, 11 are wearing hockey shirts and 14 are wearing hockey pants. There are no boys without shirts and or pants. What is the number of boys wearing full uniform?" ठीक है. So in this question what they have asked, there are 19 boys turn out for playing hockey, means the total number of students who are playing hockey is 19. Okay, of these 11 are wearing hockey shirts. So again we'll make our Venn diagram. Let's say this is shirts. Shirt is 11 are wearing hockey shirts and 14 are wearing hockey pants. 14 are wearing hockey pants. There are no boys without shirts and or pants. इस लाइन का मतलब क्या है? There are no boys without shirts and or pants. That means कि जो हमारा ये वेन डायग्राम है, जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था चेक वाला, दे हैव ऑलरेडी गिवन कि देर आर नो बॉयज विदाउट शर्ट्स एंड और पैंट्स. दैट मीन्स देयर इज नो बडी हु इज आउटसाइड ऑफ आर वेन डायग्राम. मतलब हर कोई या तो शर्ट पहने हैं या पैंट पहने हैं, एटलीस्ट शर्ट और पैंट कुछ तो पहने ही हुए. दैट मीन्स कि ये जो हमारे आउटसाइड ऑफ द वेन डायग्राम में है ना, वो जीरो है. इसका मतलब जो हमारी टारगेट ऑडियंस होगी दैट इज 19. ठीक है, 19 स्टूडेंट्स ही हैं जो टोटल भी 19 है और ये 19 ही हैं जो शर्ट पहन रहे हैं या पैंट पहन रहे हैं या दोनों पहन रहे हैं. ठीक है, क्योंकि देयर इज नो बडी हु इज नॉट वियरिंग एनीथिंग. ठीक, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज वियरिंग फुल यूनिफॉर्म? ओके, अगेन विल सॉल्व. शर्ट एंड पैंट अगर हम इसको इंडिविजुअली ऐड करें देन दिस comes out to be 25, but the total number of students is 19. So this 25 cannot be greater than 19. So this 25 cannot be greater than 19, है ना. इसका मतलब कि there are some students who are common. So how will we find common? We'll again subtract 25 minus 19, that is 6. Means there are 6 students who are wearing both shirts and pant. Okay, so I think this concept I think we are repeating for the third time. तो ये तो बहुत आसान हो गया होगा कॉमन निकालना. और जनरली भाई इनसाइड आउट का तरीका है. हम क्यों इसको निकाल रहे हैं? बिकॉज फर्स्ट अगर इफ देयर आर 2 सर्कल्स ओवरलैपिंग देन विल फर्स्ट फाइंड द 2 कॉमन. इफ देयर आर 3 सर्कल्स ओवरलैपिंग देन विल फाइंड द 3 कॉमन फर्स्ट, देन 2 कॉमन एंड देन द ओनली वन. जो 6 हो गए कॉमन, ये शर्ट वाला ये सर्कल है. टोटल शर्ट्स के स्टूडेंट 11 है. 6 इज कॉमन. 6 इज ऑलरेडी इन द सर्कल. दैट मीन्स रिमेनिंग इज 5. Like this, in this circle there are 14 students who are wearing pants. 6 is already covered. That means the students left in this circle would be 14 minus 6, that is 8. Now will we solve the problem? What is the number of boys wearing full uniform? What is full uniform? Full uniform is those who are wearing shirt and pant both. That means common. That means 6. Then our option is C option. Option C. So I think till now you will not be facing any problem, and this question is asked in the year 2018. So very recently in the last 3-4 years they have asked these many number of questions from Venn diagram. So Venn diagram has the importance in the UPSC CSAT exam. So I think after this lecture आप ये सारे क्वेश्चन आप दोबारा जब करेंगे तो I think very easily you will be able to solve all the questions. Okay, so we'll move to the next lecture. In a town, 45% population read magazine A, 55% read magazine B, 40% read magazine C, 30% read magazines A and B, 15% read magazines B and C, 25% read magazines A and C, and 10% read all the 3 magazines. What percentage do not read any magazine? Okay, so what they have asked in this question. So very clearly we can see that there are 3 things in this question. Means there will be 3 circles in our Venn diagram. Okay, so we'll draw it. This is magazine A, this is magazine B, this is magazine C. Okay,
सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये 3 सर्कल वाला 3 थिंग्स वाला क्वेश्चन है. सो वंस very attentively, if you watch how I am solving this question, then you will be able to solve all the questions where 3 things are getting involved. So 45% population is magazine A, 55% magazine B, 40% magazine C. Okay, then again they have given 30% read magazine A and B. A and B is 30%. 15% B and C. 15. And 25% A and C. And 10% all the three. A plus B plus C is equal to 10%. So in this question, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको इनसाइड आउट वाला बताया था ना, वो इस क्वेश्चन में ज्यादा यूज होगा. यू विल सी. एंड इफ यू विल बी अप्लाइंग दैट प्रिंसिपल ऑफ इनसाइड आउट, तो आपको ना हैपहैजार्डली आप नहीं करोगे, बहुत इजीली स्टेप बाय स्टेप आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा. इसको देखते हैं. इनसाइड आउट का मतलब, अगर हम टेक्निक ऑफ इनसाइड आउट लगाते हैं यहाँ पे, मतलब फर्स्ट वी विल फाइंड द 3 कॉमन, means the innermost circle, this. So we need to find how many number of people who are reading all the 3 magazines. It has already been given in the question, that is it is 10%. So if I see, just a second, so I'll take this. This is 10%. Okay, so 3 common we have already found, 10%. Now if we see, अब हमें इनसाइड आउट अप्लाई करना है, दैट मीन्स नाउ वी नीड टू फाइंड 2 कॉमन वाले. सो वी नो दैट A and B, those who are reading magazine A and B, that number is 30%. So A and B का कॉमन हम अगर हम देखें तो ये है A and B का कॉमन. कोई डाउट इसमें? नहीं समझ में आया? A एंड B का कॉमन एरिया ये है, इसमें कुछ डाउट है? ये 10% कॉम, ये ऑल द 3 है, एंड दे हैव गिवन दैट A एंड B, दोज हु रीड मैगजीन A एंड B बोथ, तो इसका ये कॉमन एरिया हो जाएगा, दैट इज 30%. तो दिस टोटल इज 30% एंड दिस 10% इज ऑलरेडी in this that elliptical shape or oval shape, whatever the shape is being formed. That means यहां पे कितना बचा? यहां पे बचा 30, क्योंकि 30% है पूरा, 10 ऑलरेडी है, दैट मीन्स 20. तो इस एरिया में कितना बचा? 10%. व्हाट इज दिस 20%? 20% इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर रीडिंग ओनली A एंड B एंड नॉट C. ओके, क्योंकि अगर हम C को भी ऐड कर लें, मतलब तीनों पढ़ रहे हैं 10, ठीक है, टोटल A एंड B वाले कॉमन है 30, तो केवल A एंड B वाले कितने हो जाएंगे जो C नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज 20. वो 20 कैसे निकाला? टोटल A एंड B वाला गिवन है 30, 10 ऑलरेडी गिवन है फ्रॉम आवर क्वेश्चन, देन दिस विल बी रिमेनिंग 30 minus 10, 20%. Now we see B and C. B and C common is 15%. So I'll just change the color of marker. So B and C common, B and C, इसका कॉमन कितना है? ये वाला एरिया कॉमन हो जाएगा, ये कितना है? 15%. ठीक है, 10% ऑलरेडी है, तो यहां पे कितना बचेगा? 15 टोटल है पूरा, 10 ऑलरेडी है, मींस 5%. सो दिस नंबर इज 5. गॉट इट? और अगर हम A एंड C वाला जो ये है लास्ट, इसको अगर मैं देखूं, again I'll change the color, let's say this color is this purple. So A and C टोटल है 25. A and C वाला पार्ट कौन सा हो जाए? A ये है, C ये है, कॉमन ये है, this would be A and C. Total 25, 10 is already given, to 25 minus 10, that is 15. So this would be 15. Any doubt in this Venn diagram? No. क्योंकि ये देखो पूरा टोटल 25, 10 ऑलरेडी है, तो कितना हो? 15.
इनसाइड आउट का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कैसे हम यूज कर रहे हैं? हमने क्या किया, पहले हमने ऑल थ्री कॉमन निकालने की कोशिश करी, वो ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर में, तो इट वाज नॉट अ बिग डील। इसके बाद हमने वी ट्राइड टू फाइंड आउट ओनली टू कॉमन, द पीपल हु आर रीडिंग एनी ऑफ द टू मैगजीन्स ओनली। ओके, सो वो हमने निकाल लिया। अब हम इंडिविजुअल निकालेंगे, ओनली वन वाले। तो ओनली वन वाले कैसे निकालेंगे? टोटल ए इज 45, टोटल ए इज 45, ये टोटल ए है। अब इस सर्किल में ऑलरेडी कितने आ चुके हैं? टोटल ए है 45, इसमें कितने आ चुके हैं? 20 आ चुका है, 10 भी आ चुका है इस पूरे सर्कल के अंदर, और कितना आ चुका है? 15 भी आ चुका है। तो दिस कम्स आउट टू बी 20, 30, 40, 45, 0 मीन्स ये जो है, व्हाट इज दिस जीरो? What we have found out? We have found out the number of people who are reading only magazine A. Got it? So ये केवल वो लोग हैं जो केवल मैगजीन ए पढ़ते हैं। तो टोटल मैगजीन ए वाले 45 थे, उसमें 20 थे जो केवल ए और बी पढ़ रहे थे, 15 थे जो केवल ए और सी पढ़ रहे थे, और 10 थे जो तीनों पढ़ रहे थे। तो हमने इसको कैलकुलेट किया कि भाई इस पूरे सर्कल में से 45 में से ये तीनों हम माइनस कर दे तो हमें ये मिल जाएगा, राइट? बट व्हेन वी calculated it, this comes out to be 0, means there are nobody who is reading only magazine A. We'll try to find out for this. Total B is 55, and in this circle, this B का circle जो है ये वाला, इसमें 20%, then this 10%, and this 5%. So this comes out to be 20 plus 10, 30, 35, 55, 20%. So this 20% is the number of the people who are reading only magazine B. ठीक है, अब हम इस only C वाला निकाल लेते हैं। तो total C is 40%। अब इस 40% इस वाले सर्कल में मैं देख रहा हूं 15% जो जो इस सर्कल में आते जाए। सो इन दिस वेन डायग्राम्स क्वेश्चन इट इज वेरी वेरी इजी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर डायग्राम, बिकॉज योर डायग्राम विल ऑटोमेटिकली गिव यू द आंसर। आप देखो डायग्राम का कितनी आसानी से कर रहा हूं कि टोटल सी है, तो सी अगर 40% है तो मैंने सी वाला डायग्राम देखा, अच्छा 40 है, 40 में क्या क्या आ चुका है, जो जो आ चुका है वो हटा दो, तो जो रिमेनिंग होगा वो हम पता कर लेंगे। तो अपने डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है। तो 40% माइनस दिस 15%, फिर उसमें से ये 10 हटा दिया, फिर ये 5 हटा दिया, तो 15, 5, 20, 30, 10%. So this is 10%. So there are 10% people who read only magazine C. So now I think we have found out everything. What percentage do not read any magazine? So what they asked, that concept number 2, that means कि there are somebody, if they are asking in the question कि there are some people who are not reading any of the magazine. Okay. So अब अगर हम इसको निकालेंगे तो कैसे करते हैं? 3 कॉमन वाले तो 10% हो गए, 2 कॉमन वाले कितने होंगे? जो केवल 2 मैगजीन पढ़ते हैं, ए एंड बी वाले 20, दोज हु आर रीडिंग ओनली मैगजीन ए एंड बी, बी एंड सी वाले 5, एंड ए एंड सी वाले 15, 40. So 40% of the people are those who read any 2 magazines only. Okay. And now if we see individual, only one. So only I'll erase some of the things. So only one वाले अगर मैं निकालूं, so A का 0 है, B में only B जो है वो 20 है, और केवल C मैगजीन जो पढ़ रहे हैं this is 10, this is 10. This is 10, that is 30%. So this is the 30, this is 30%. So if we add all 3, those who are reading all magazines, that is 10%,
those who are reading any two magazines, that is 40%, and those who are reading only one magazine, either A or B or C, the total is 30. This total comes out to be just a second. This total comes out to be 40, 10, 50, 30, 80%. Means there are total 80% people who read at least one magazine. या तो वो ए पढ़ रहे हैं, या बी पढ़ रहे हैं, या सी पढ़ रहे हैं, या ए और बी में पढ़ रहे हैं, या बी और सी पढ़ रहे हैं, या ए और सी पढ़ रहे हैं, या तीनों पढ़ रहे हैं. तो 80% जो है ये कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं. दे आर रीडिंग एटलीस्ट वन मैगजीन. सो व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड. एक्चुअली क्वेश्चन को ना ये ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है कि व्हाट दे हैव आस्क्ड. जनरली ये नॉट है ना, नॉट करेक्ट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी जनरली मिस. तो इसको ध्यान से पढ़ना कि वी डू नॉट रीड. तो 80% तो रीड कर रहे हैं ना कुछ, तो देन हाउ मेनी विल नॉट बी रीडिंग एनीथिंग. दैट इज 100 minus 80. दिस इज 100, then that is 20%. So what would be our answer? Answer C, 80-20%. So I think ये जो क्वेश्चन है ये 3 डायग सर्कल वाला, सो आई थिंक आपको ये दे हैव आस्क्ड दिस इन द ईयर 2015, बट दिस इज अ क्वेश्चन विच यू नो क्लियर्स द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेरी बेस. तो अगर आपको ये पूरा समझ में आ गया है तब आपको आगे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं होगी. सो इफ आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ दैट 4 क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी प्रीवियस ईयर, एंड आई गारंटी कि अगर आपने ये 4 क्वेश्चन ध्यान से समझे हैं, आपने सर का ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है, तो आपसे कोई भी यूपीएससी सीसैट का वेन डायग्राम का क्वेश्चन नहीं रुकेगा. ठीक है, इसको आप आफ्टर माय वीडियो यू ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस अगेन by applying these two concepts, that is inside out and that second is check. Okay, so now we'll move on to the next question. So this next question is, out of 130 students appearing in an examination, 62 failed in English, fine, 52 failed in maths, whereas 24 failed in both English and mathematics. The number of students who passed finally is. ठीक है, तो अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का. तो सबसे पहले ना वेन डायग्राम में यू नो व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि देयर आर हाउ मेनी आर्टिकल्स, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, हाउ मेनी थिंग्स. जैसे इसमें अब क्या है, इंग्लिश एंड मैथ मीन्स दो ही सब्जेक्ट है. अगर 2 सब्जेक्ट है इसका मतलब हमारे 2 सर्कल बनेंगे. तो अगर आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आप 2 सर्कल बनाने जा रहे हैं या 3 सर्कल बनाने जा रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि भाई टोटल कितना है, 130 students. 62 failed in English and 52 failed in mathematics. 2 सर्कल बन रहे हैं, जनरली ओवरलैपिंग सर्कल होते हैं. 62 मैथ, 52, whereas 24 failed in both English and mathematics. मतलब they have given you the common also. तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना. क्या बचा इसमें, हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले हमें कॉमन निकालना होता है, वो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, और 2 सर्कल का क्वेश्चन है तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में. तो विल सी. 62 फेल्ड इन इंग्लिश, मैथ्स में 52, ठीक है, 24 फेल्ड इन बोथ, ठीक है. तो अगर मैं ये देखूं 62 प्लस 52, 114, ठीक है. अभी आई थिंक इसको अगर हम अभी नहीं करते हैं, छोड़ो. विल सी कि देयर आर 24 कॉमन, राइट. इंग्लिश वाला सर्कल देखो आप, इनसाइड आउट हमें ये पता है हम इधर जाएंगे, ये पता है हम इधर जाएंगे. 24 कॉमन है. टोटल इंग्लिश वाले कितने हैं, 62. तो इसमें कितना ओनली इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे, 62 माइनस 24. इंग्लिश वाला टोटल ये है 62, 24 was already given, then this would be 38, I think 38 plus 62, ठीक है, 38. तो this number would be 38, means there are 38 students who have failed in English. मैथ का देखें तो मैथ का टोटल 52 है इस सर्कल में, 24 is already given,
then only who the number of students who failed only in mathematics is 52 minus 24. This is 28 I think. This is 28. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28. फाइन. सो विल सी कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास फाइनली इज. तो हम ये देख लेते हैं, ये फेल वाला डायग्राम है ना, ये फेल वाला डायग्राम है. तो दोज हु फेल्ड in two subjects, two common. 24. Those who failed in only one subject, that is either English or maths, that is 38 plus 28, that is 66. Okay, 66, right? तो ये 66 कौन है? जो या तो इंग्लिश में फेल हुए हैं या मैथ में फेल हुए हैं. 24 कौन से हैं? जो दोनों में फेल हुए हैं. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड आर दिस 24 प्लस 66, दैट इज 90. तो टोटल कितने स्टूडेंट्स फेल हुए? 90. टोटल स्टूडेंट्स है कितने? 130. तो जो 130 में 90 फेल हुए तो पास कितने हुए? 130 माइनस 90, that is 40. ऑप्शन ए. फाइन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, वेन डायग्राम में क्वेश्चन देखने के टाइम, पढ़ने के टाइम आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ मेनी सर्कल्स यू आर गोइंग टू ड्रॉ. ठीक है, अब वी विल ट्राई टू फाइंड इट आउट व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन. In a group of persons traveling in a bus, 6 persons can speak Tamil, 15 can speak Hindi, and 6 can speak Gujarati. So now we can see there are 3 languages involved here: Tamil, Hindi, and Gujarati. तो 3 लैंग्वेजेस यहां पे इन्वॉल्व है. तो इसका हमारे 3 सर्कल बनेंगे. बनाते हैं. अगेन हर क्वेश्चन में वही करना है. ये आपकी तमिल हो गई, कितने हैं? 6%. सेकंड, कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा. 6%. 15 कैन स्पीक हिंदी. तो अगर ये हिंदी है, 15 कैन स्पीक हिंदी, एंड 6 कैन स्पीक गुजराती. Six can speak Gujarati. ठीक है. In that group none can speak any other language. तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ये जो पूरा ग्रुप है ना इनका, इस पूरे ग्रुप में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कोई और लैंग्वेज बोल सके. वो या तो तमिल बोलता है, या तो हिंदी बोलता है, या गुजराती बोलता है. ऐसा कोई भी नहीं है जो कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता हो. ठीक है. ठीक, इसका मतलब कोई भी हमारे आउटसाइड ऑफ द वेन डायग्राम नहीं है. या तो वो तमिल बोलेगा, या हिंदी बोलेगा, या गुजराती बोलेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा. आउटसाइड ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस देयर इज नोबडी हु स्पीक एनी लैंग्वेज आउटसाइड ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस. ठीक है. इफ 2 पर्सन्स इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस ओनली, इसका मतलब क्या है? इसको हम देखते हैं. एंड 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस. जैसे ही मुझे कोई गिवन डेटा मिला, मैंने तुरंत डायग्राम में लिख दिया. और हमारा इनसाइड आउट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे ही 3 सर्कल है तो सबसे पहले हम 3 कॉमन फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो 3 कॉमन दे हैव ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन कि देयर इज 1 पर्सन हु कैन स्पीक ऑल द 3 लैंग्वेजेस. तो ये 1 लिख दिया मैंने. इफ 2 पर्सन्स इन द ग्रुप कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस ओनली, 2 लैंग्वेजेस ओनली. तो 2 लैंग्वेजेस ओनली वाला अगर मैं देखूं कि हमारे कौन कौन से एरिया हैं जो 2 लैंग्वेजेस ओनली, ये है इतना पोर्शन जो या तो तमिल या हिंदी बोलते हैं, या ये वाला पोर्शन हो जाएगा जो तमिल और गुजराती केवल बोलते हैं, या ये वाला पोर्शन हो जाएगा, है ना, जो हिंदी या गुजराती बोलते हैं. ठीक है. तो दीज 3 विल बी द एरियाज जो ओनली 2 वाले हैं. तो लेट्स मैं मान लेता हूं कि देयर आर एक्स नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली तमिल एंड हिंदी, देयर आर वाई नंबर ऑफ पीपल who speak only Tamil and Gujarati, and there is
z number of people who speak only Hindi and Gujarati. So total number of people who speak only two languages, that is x plus y plus z, right? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल है, हमने कुछ वेरिएबल मान लिए x प्लस वाई प्लस जेड। और इसमें क्या है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ टू पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस ओनली, टू लैंग्वेजेस ओनली क्या हमें ऑलरेडी पेपर में दे रखा है क्वेश्चन में कि दो हैं, और ये x प्लस वाई प्लस जेड ये हमने अपना माना हुआ है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू टू, राइट? दो द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एनी टू लैंग्वेजेस ये दिया है क्वेश्चन में कि दो है, और हमने अपने वेन डायग्राम से x प्लस वाई प्लस जेड निकाला, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 ये हमें गिवन है, ये हमने इन्फरेंस निकाला है, ठीक है। और ये पहले ही दिया जा चुका है कि हमारे वेन डायग्राम के बाहर कोई भी नहीं है। तो अब मैं अगर इसको ये निकालूं, ओनली वन वाले निकालता हूं मैं, ओनली तमिल, टोटल तमिल के कितने, ये सर्कल है टोटल तमिल का 6, और इस सर्कल में कौन कौन से ऑलरेडी आ चुके हैं, x प्लस 2 कॉमन वाला y प्लस 1, राइट? केवल हिंदी, ये है केवल हिंदी, टोटल हिंदी में 15, और इसमें कौन कौन से आ चुके हैं, x प्लस 1 प्लस z, और केवल गुजराती वाला अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो देन वील हाउ विल वी फाइंड इट आउट कि टोटल गुजराती देयर आर 6 पीपल, 6 माइनस y प्लस 1 प्लस z। आई थिंक टिल नाउ यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। अगेन अवर इनसाइड आउट वाला फॉर्मूला ये हमें गिवन था, हमने फिर ये निकालना, ये हमें गिवन नहीं था, कोई दूसरा रिलेशन दिया था, देन वी हैव यू नो assumed that x and y and z, और उसके बाद फिर हम इससे बाहर आ गए, ओनली वन की तरफ चले गए। तो अगर मैं ओनली वन वाले टोटल देखूं तो टोटल ओनली वन वाले हो जाएंगे 6 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1, है ना? ये है जो केवल तमिल बोल रहे हैं। केवल हिंदी वाले हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, 15 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस जेड, और केवल गुजराती वाले हैं 6 माइनस वाई प्लस 1 प्लस जेड। ओके, तो ये टोटल, और ये ओनली वन वाले हैं। तो अगर मैं इसको ओनली वन वाले को सॉल्व करूं तो 6 प्लस 15 21 प्लस 6 27, 27 में से 1 1 1 3 टाइम्स माइनस हो जाएगा, तो दिस वुड बी 24, एंड दिस वुड बी minus x, this would be minus 2x, then again minus y minus 2y, then this would be minus 2x minus 2y minus 2z, 2 अगर कॉमन ले लेंगे then this would be x plus y plus z। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है? आप एक स्टेप दो स्टेप ज़्यादा ले सकते हो, तो वो प्रैक्टिस से ये आ जाएगा, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत आराम से आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत प्रैक्टिस से आ जाएगा वो, ठीक है? तो आई इरेज दिस डायग्राम, क्योंकि अभी हमें शायद डायग्राम की अब ज़रूरत है नहीं, हम इसको थोड़ा सा डायग्राम इरेज करके हम करते हैं, ठीक है? ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एनी लैंग्वेज, हम टोटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 कॉमन, टोटल जो 3 लैंग्वेज बोलते हैं 3 कॉमन 1, देन 2 कॉमन का हमें 2 दिया हुआ है 2, एंड ओनली वन वाला ये हम दिया हुआ है 24 माइनस 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दिस इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ही है ना, पर्सन्स जो भी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो इन तीनों में से लैंग्वेज, जो इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, या तो वो 3 बोलेंगे या 2 बोलेंगे या 1 बोलेंगे, और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कोई आउटसाइडर लैंग्वेज बोलता हो। तो ये टोटल हो जाएगा जो पर्सन बस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो दिस इज 2 + 1 3
प्लस 24 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हम ऑलरेडी 2 निकाल चुके हैं। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 3 प्लस 24 माइनस 2 इंटू 2, ये 2 टू 4 27, 27 माइनस 4 23। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो दिस इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर ट्रेवलिंग इन द बस। और शायद यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, देन हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द ग्रुप, इन द ग्रुप या जो बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आंसर 23 आ जाएगा। कुछ भी डिफिकल्ट था इसमें? कुछ भी नहीं था। हर क्वेश्चन में आपको सेम ही स्टेप करना है, इसीलिए हमने सारे पीवाईक्यूज को एक जगह लाए हैं। it is a rigorous task to bifurcate the questions and then arrange in the order, but for you people हमने ऐसा ये अरेंजमेंट लाया है आपके लिए, क्योंकि you will notice a pattern after certain questions कि what kind of questions generally they ask in the exam। तो आपको पता चल रहा होगा कि या तो वो 2 आर्टिकल के, 2 सर्कल के, या 3 आर्टिकल या 3 सर्कल के क्वेश्चन पूछते हैं, एंड हाउ टू अप्रोच। मैक्सिमम वो क्या कर सकते हैं, या तो वो तीनों का कॉमन दे देंगे या नहीं देंगे, समथिंग लाइक दैट दे विल आस्क। वो जितना भी मोल्ड करेंगे, वी विल बी कवरिंग ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस लेक्चर फ्रॉम 2011 टू 22, मींस 12 इयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी इस सीरीज में। ठीक है, सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। There are 50 students admitted to a nursery class. Some students can speak only English, some can speak only Hindi, 10 can speak both English and Hindi. If the number of students who can speak English and Hindi, how many can speak only Hindi and speak only English? ठीक है। So इसमें हमको फिर से समझना है कि हमें कितने सर्कल्स बनाने हैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है, आई थिंक इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं बोली है। तो अगर मैं इसको इंग्लिश और हिंदी के अगर बना लेता हूँ, तो दिस इज इंग्लिश, दिस इज हिंदी। देयर आर 50 स्टूडेंट्स, तो टोटल दिया हुआ है 50। सम स्टूडेंट कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, 10 कैन स्पीक बोथ, तो 10 बोथ दिया हुआ है कॉमन। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21, टोटल इंग्लिश वाले 21 है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी, एंड देन दे विल आस्क सम। तो व्हाट विल वी डू कि वी विल मेक आवर वेन डायग्राम, we will write all the values and then we'll see कि what they have asked in the question। ठीक है, इंग्लिश वाले 21 है ना, इसको 1 ठीक से लिख देते हैं। ठीक, अगेन इट इज वेरी इजी यार, ये टोटल इंग्लिश वाले 21 है, इसको मैं दूसरे पेन से ले लेता हूं। तो टोटल इंग्लिश वाले 21 है, 10 आ चुके हैं जो कॉमन है, तो दिस मीन्स ओनली इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है, अब एक बात बताओ, टोटल स्टूडेंट्स आर 50। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स आर 50, सो 2 कॉमन कितने हैं, 10, दोज हु आर स्पीकिंग दीज 2 लैंग्वेजेस बोथ, और 1 ओनली वाले कितने हैं, लेट्स से ओनली हिंदी वाले X हैं, तो 1 ओनली वाले कितने हो जाएंगे, ओनली इंग्लिश वाले 11 है और ओनली हिंदी वाले X है। और इन दिस एग्जाम दे हैव गिवन दैट सम कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, 10 स्पीक बोथ। तो इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो कुछ नहीं बोल पा रहा है। ओके, तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पीक these 2 languages, those who speak both the languages, those speak only one language, 11 plus X, and total number of students they have given in the question, it is 50, and because every student can speak at least one language, then this is 10 plus 11 plus X, that means X is equal to, I think this is 29, 50 minus 21, 29, so this comes out to be 29. So there are 29 students who speak only language Hindi. Now we'll see what they have asked in the question. Then how many students can speak Hindi? Okay, so अब ना इधर पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ना आप सब कुछ निकाल चुके हो, पर अगर आपने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा, अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो बहुत छोटी गलतियां होंगी जो सब सही करेंगे। और हमें एग्जाम में क्या करना है, जो सब सही कर रहे हैं वो तो सही करना ही है,
एक आध एक्स्ट्रा वो भी सही करने जो लोग नहीं सही कर रहे हैं। तो अगर आप यहां पे ब्लंडर करते हो देन यू आर गोइंग टू लूज द गेम। तो कैन स्पीक हिंदी, मतलब उन्होंने ओनली हिंदी नहीं लिखा है, हिंदी, हिंदी मीन्स दिस टोटल, उसमें 29 ओनली हिंदी वाले भी आएंगे, 10 आएंगे जो इंग्लिश भी बोल रहे हैं, तो मीन्स ऑन हिंदी वाले टोटल कितने हो जाएंगे, दिस हिंदी, दिस इज हिंदी, 29 प्लस 10 दैट इज 39, तो दिस शुड बी 39। हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, ओनली हिंदी वाले कितने हैं, 29 है, दिस इज 29। एंड हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली इंग्लिश, तो हम पहले निकाल चुके हैं, 11 है, 11, देन आंसर वुड बी 39, 29, 11, 39, 29, 11, ऑप्शन डी। ओके, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जनरली दे आस्क, तो इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट सा नहीं था। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of a total of 120 musicians in a club, 5% can play all the three instruments, guitar, violin, and flute. It so happens that the number of musicians who can play any two and only two of the above instruments is 30. The number of musicians who can play the guitar alone is 40. What is the total number of those who can play violin alone or flute alone? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्या समझ में आया कि there are three circles which are going to be made, ठीक है, क्योंकि गिटार, वायलिन, फ्लूट तीन आर्टिकल हैं, सबसे पहले तो हमें यही निकालना है। जनरली ऐसा ही डायग्राम बनेगा, तीनों में कॉमन बनेगा वेन डायग्राम के क्वेश्चन में। सो दिस इज गिटार, दिस इज वायलिन, दिस इज फ्लूट। 120 musicians in a club, 5% can play all the three instruments, means 3 कॉमन का उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन पेपर में, बट नॉट डायरेक्टली, दैट यू हैव टू कैलकुलेट। सो 5% मीन्स 120 का 5%, दैट इज 6। सो ये दे रखा है वेन डायग्राम से 6, इनसाइड आउट लगाना है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अब हम इधर पे जाते हैं, ये 6 है, ठीक है। It so happens that the number of musicians who can play any two and only two of the above instruments is 30. Any two and only two, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि इसमें केवल वही लोग हैं जो केवल 2 इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, राइट? मीन्स नॉट 2, दैट इज ओनली 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, एग्जैक्टली 2 बजा रहे हैं। तो लेट्स से अगेन जो हमने क्वेश्चन किया था पहले, वैसा ही अगर हम यहाँ पे कुछ करें कि अगर हमने इसको x मान लिया, दोज हु प्ले ओनली गिटार एंड वायलिन, दोज हु प्ले ओनली गिटार एंड फ्लूट इज y, एंड दोज हु प्ले ओनली वायलिन एंड फ्लूट इज z, देन द 2 कॉमन मीन्स दोज हु आर स्पीकिंग ओनली 2 इंस्ट्रूमेंट्स इज x plus y plus z. And in the question they have given, it so happened that the number of musicians who can play any two and only two of the is 30, means they have already given in the question the number of students who can play only 2 instruments, total that is 30, this is given in the question. And the number of musicians who can play the guitar alone is 40, तो गिटार alone 40 दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि ये जो 40 दिया हुआ है ये हम कैसे आएगा, अगर हम अपने से सॉल्व करें, तो इस सर्कल गिटार का ये है, यही तो है गिटार का टोटल, ठीक है। सो ओनली 1 वाले अगर मैं निकालूं, ओनली 1, मैं केवल गिटार, ओनली 1 वाला गिटार का तो 40 दिया हुआ है, दिस इज 40, फाइन। गिटार का ओनली 40 दिया हुआ है। अब वायलिन का, लेट्स से वायलिन का V स्टूडेंट्स हैं, फ्लूट का F है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग ओनली वायलिन इज V, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग ओनली फ्लूट इज F। सो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली 1 वाले कितने हो जाएंगे, 40 जो केवल गिटार बजा रहे हैं, V जो केवल वायलिन बजा रहे हैं, फ्लूट जो केवल फ्लूट बजा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। सो देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज गिवन 120,
Okay, so now if we add all the three, then we will find total students who are playing at least one instrument. ठीक है, तो जनरली इस क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया है कि देर आर लाइक सम पीपल हु आर नॉट प्लेइंग एनी इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 कॉमन वाले 6 हो जाएंगे. दोज हु आर playing only two instrument will be 2 common, that is 30, and those who are playing any one instrument, that is that we have calculated 40 plus v plus f, and this must be equal to the total number of students in the question, that is 120. 120 is equal to 30, 40, 76 plus v plus f. Then from here v plus f is equal to 120 minus 76, 44, means the number of students who are playing either violin or flute alone. V कौन है जो केवल वायलिन बजा रहे हैं, फ्लूट F कौन है जो केवल फ्लूट बजा रहे हैं. तो केवल वायलिन बजाने वाले और केवल फ्लूट बजाने वाले टोटल कितने हैं? 44. और क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन. तो यही तो वो एग्जाम में पूछ ही रहा है. तो V प्लस F पूछ रहा है, दैट इज 44. तो ये आपका आ गया. आई थिंक कि यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन. थोड़ा सा ऐसे कॉन्सेप्चुअल तो I won't say because it is like the same questions we have solved till now. So सबका ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है. किसी में आपको ये लाइक एज्यूम करना पड़ेगा, किसी में नहीं करना पड़ेगा. सो जनरली इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट्स क्लियर कि यार ये 3 कॉमन हमने पहले निकाल लिया, फिर हमने 2 कॉमन की तरफ गए, फिर हमने ओनली 1 निकाल लिया, इनसाइड आउट वाली टेक्निक लगाई, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा इशू है. तो आप इस लेक्चर के बाद आप क्या करना, ये सारे करने के बाद अगेन आप इस सारे क्वेश्चंस को उठाना, इसको सॉल्व मत, मतलब सोल्यूशन मत देखना, खुद से करने की कोशिश करना. एंड आई थिंक कि यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. और आई थिंक कि वॉट एवर आई हैव टॉट यू, और सर ने भी जो भी आपको पढ़ाया बहुत अच्छा पढ़ाया है सर ने. आई थिंक अगर ये दोनों चीज़ें आपने अच्छे से करी हैं तो इफ़ यू आर थोरो विद दीज टूल लेक्चर्स, तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे. एंड वॉट एवर द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम यू, है ना, इन द अपकमिंग एग्जाम, तो भी आप you will be able to solve all the questions. So we'll see the next question. In the below figure, circle P represents hardworking people, circle Q represents intelligent people, circle R represents truthful people, and circle S represents honest people. Which region represents the people who are intelligent, honest and truthful but not hardworking? तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में जितना मुझे समझ में आ रहा है, तो कुछ सॉल्व करने का नहीं है. उन्होंने ना बहुत क्लमजी सा एक डायग्राम दे दिया है आपको, बहुत क्लमजी डायग्राम है. तो मैंने जो बोला था ना, वेन डायग्राम में यू नीड टू नो हाउ टू सी योर डायग्राम. और ये करने के लिए क्या जरूरी है कि आप बहुत अटेंटिवली, बहुत फोकस के साथ अपना डायग्राम देखो. आप बहुत फोकस के साथ कि अच्छा ये सर्कल है, अच्छा इस सर्कल में ऐसे हो रहा है, इस सर्कल के बाहर ये सर्कल है, अच्छा ए के अंदर कॉमन कौन कौन सा है वो माइनस कर दो. इस तरह से करना है आपको बहुत ध्यान से. तो इसमें ना केवल हमें डायग्राम ध्यान से देखना है और ऑटोमेटिकली आपका सोल्यूशन निकलेगा. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2012. थोड़ा सा ओल्ड है बट ये कॉन्सेप्ट के लिए काफी अच्छा है आपके. तो सर्कल पी रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्किंग पीपल, तो ये हार्ड वर्किंग लोग हैं. सर्कल क्यू रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंट पीपल. ठीक है, क्यू वाले हैं इंटेलिजेंट. सर्कल आर रिप्रेजेंट्स ट्रुथफुल. सर्कल एस रिप्रेजेंट्स ऑनेस्ट. सारे अच्छे लोग इसी में हैं, इसी ग्रुप में हैं सारे अच्छे लोग, है ना. विच रीजन रिप्रेजेंट्स द पीपल हु आर इंटेलिजेंट. हमें इंटेलिजेंट पता करना है, ऑनेस्ट भी चाहिए, ट्रुथफुल भी चाहिए, पर एक कोई नहीं चाहिए हमें. कौन सा नहीं चाहिए? इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग नहीं चाहिए हमको. अपने में से हमें हार्ड वर्किंग माइनस करना है और ये तीनों चीजें क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर. देखते हैं डायग्राम. इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का ये डायग्राम है, बहुत बढ़िया.
ये इंटेलिजेंट है, ठीक है। ऑनेस्ट कौन है भाई? ये एस, ये वाले ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट है। तो अगर इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट का कॉमन एरिया देखें तो ये एरिया अभी तक निकल के आया दो का, ये दो का, जो मैंने अभी ये किया है, ये वाला जो एरिया है ये निकल के आया है इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट का। तो अभी तक तुम्हारा ये है, पर हमको ट्रुथफुल भी चाहिए, ट्रुथफुल भी चाहिए। तो अब मैं ट्रुथफुल भी निकालता हूं। ट्रुथफुल 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 कहाँ है? ये ट्रुथफुल वाला सर्कल है, अभी तक का हमारा ये कॉमन एरिया है, इसमें से ये आ रहा है, ये कॉमन, मतलब ये हो जाएंगे ट्रुथफुल, इतना एरिया, ये पूरे इतना एरिया ये हो जाएगा ट्रुथफुल वाला। देखिए पूरा इंटेलिजेंट ऑनेस्ट का ये है, ट्रुथफुल का ये पूरा सर्कल है, तो इन तीन का कॉमन कौन सा हो जाएगा? ये एंड ये, दिस वन, ठीक। बट व्हाट दे हैव आस्क्ड only intelligent, honest and truthful, they haven't asked for hard working people, so we need to remove the number of hard working people from our diagram. तो हार्ड वर्किंग, इस डायग्राम में से हार्ड वर्किंग कौन सा है? ये हार्ड वर्किंग का सर्कल है। तो अगर इतने में से मैं हार्ड वर्किंग का निकाल दूं, मतलब ये वाला पोर्शन निकाल दूं, तो हमारा रिमेनिंग पोर्शन यही बचेगा जो हमारा टारगेट है, दैट इज 6 है ऑप्शन, ऑप्शन इज 6। कुछ भी डिफिकल्ट था इसमें? आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ भी था। ये जैसे मैंने बताया आपको, पहले आपने आप दो के ग्रुप ले लो, हार्ड वर्क इंटेलिजेंट, ठीक है, हार्ड वर्क सॉरी नॉट हार्ड वर्क, इंटेलिजेंट प्लस ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट प्लस ऑनेस्ट आपने इसका लिया, इंटेलिजेंट प्लस ऑनेस्ट का आपने ये बना लिया कॉमन, फिर उस दो कॉमन में से फिर आपने तीसरा ऐड किया, जो कॉमन पोर्शन है उसको चूज किया, फिर चौथा लिया, उसमें से कॉमन पोर्शन लिया, और जो नहीं है उसको आपने रिमूव कर दिया अपने में से। तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो आप इस क्वेश्चन को एक दो बार ध्यान से देखना, देन दिस क्वेश्चन वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द डायग्राम। ओके, और जैसे मैंने किया आप ऐसे ही एक दो बार करोगे, आपको अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे डायग्राम्स को रीड करते हैं। ओके, so let's move on to the next question. There are 100 students in a particular class, 60% students play cricket, 30% play football and 10% students play both the games. What is the number of students who play neither cricket nor football? So again, while solving the question, while we are going to start the question, हम क्या करेंगे? Cricket, 60% students play cricket. दो ही गेम है तो दो चीजें बनेंगे, दो सर्कल बनेंगे। क्रिकेट के हैं 60% एंड देयर आर 100 स्टूडेंट्स, राइट, 100 स्टूडेंट्स, तो 100 का 60% तो 60 ही हो जाएगा, राइट। अगर मैं परसेंट साइन हटा दूं यहां से तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्रिकेट के टोटल 60% स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, तो 100 का 60% कितना हो जाएगा? 160 स्टूडेंट्स। 30% स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, तो 100 का 30% इज 30, दैट इज 30 स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल, and 10% students play both the games. 10% means this common area is 10. What is the number of students who play neither cricket nor football? It means there are some people who are not playing any of the sport given. मतलब ना तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं और ना वो फुटबॉल खेल रहे हैं। कितने हैं ये हमें पूछा है, ठीक है। सो इफ वी सी कि देयर आर टोटल 100 स्टूडेंट्स, तो इफ वी सी क्रिकेट वाला, हाँ, अगेन इनसाइड आउट वाली टेक्निक लगाते हैं। ये हमें कॉमन दिया हुआ है 10, इधर से हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, 2 कॉमन का हमें 10 दिया हुआ है, अब हम ओनली 1 निकालते हैं। तो ओनली क्रिकेट अगर हम निकालने के लिए, हम क्रिकेट का ये देखें पूरा सर्कल, टोटल क्रिकेट 60 है, इसमें से कॉमन इस सर्कल के अंदर 10 है, 10 is the number of students who play both cricket and football. Then the total number of students who play only cricket would be 50. If we see that football, if we see that circle of football, total football playing students are 30. 10 students are already common in this circle, means they are playing both cricket and football. That is 10. This is 20. Okay, so there are 20 number of students who play only football. So if we see कि how many students are playing the game cricket or football total, so total में how will find those who playing both 2 common
plus those who play only one game. So those who play cricket and football both, that is 10, this is 10, and जो only one, those who play only one game, that is only cricket वाले हैं 50, and only football वाले कितने 20. So if we add, this comes out to be 80. Means there are 80 students who play cricket and football or any of the one game. मतलब 80 स्टूडेंट्स जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं. 100 टोटल है, 80 खेल रहे हैं, तो कितने नहीं खेल रहे हैं? 100 minus 80, that is 20. So there are 20 students who are not playing cricket, who are neither playing cricket nor football, कुछ भी नहीं खेल रहे हैं वो. ठीक है, तो अगर if we see तो हमारा ऑप्शन बी है 20. ओके, सो आई थिंक दिस वाज द वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था. तो let's see. Okay, so I think we have covered all the questions of Venn diagram of UPSC CSET which have been asked from the year 2011 to 22. So I think आपको इस लेक्चर से काफ़ी बेनिफिट होगा क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हमने बाइफरकेट करके कराए हैं. सो अगेन आई वुड हम्बली सजेस्ट कि आप पहले सर का वीडियो देख लीजिए, आपको उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. देन आप एक बार इस लेक्चर को देखेंगे, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, आप उससे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. देन आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व every question which is going to be asked in your exam, and that is of Venn diagram. Okay, so if you have any doubt in this topic, we are always here to help, so please let us know. And thank you so much for watching this video, and all the best for your studies. Thank you.